दीक्षित सर, तुम्ही होस्ट आहात आता? हो, पेपर मिळाला का? हो सर. हॅलो. हा हा हो, भेटला सर, भेटला. हा, ठीक आहे. येस. Yes, good morning, Sheetal, Gayatri, Manjiri. Good morning, everyone. Sakshi Pawar, Shrikant Gaikwad. Can you hear me, all of you? Maninder Kaur. Okay. So today we are starting. Yes, thank you, Gayatri. So today we are starting. Good morning, Sakshi Wag. Today we are starting Animal Kingdom. Good morning, Priyanka. Yes. Yash Kirdak. What do you want to know? Animal Kingdom. Yash Kirdak. What do you want to know? Yes. Okay. कशाची टेस्ट बेटा? टेस्ट तुमची तिकडून होईल. महादेव सर सांगतील तुम्हाला टेस्ट बद्दल. Now, आता Animal Kingdom, in Animal Kingdom, we will discuss about the different criteria. Criteria for classification of animals. Then we will discuss about classification of animals. Plan of classification. देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम बोलते हैं क्राइटेरिया. तो क्राइटेरिया मीन्स what are the different features, body features, on the basis of which we have classified organisms. तो पहला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट नोट करता हूं. क्राइटेरिया पॉइंट्स. Criteria points. First is levels of organization.
levels of organization. Then second criteria is body plans. Third criteria is body symmetry. Body symmetry. Then fourth criteria is body cavity, or we will take germ layers. Then fifth criteria is body cavity. Body cavities. Then sixth criteria can be segmentation, body segmentation. How is body segmented? Segmentation. Seventh criteria, you can take development. Body development. So we can have more criteria points, but I think these 7 criteria, they are important. And then we will talk about classification. This point. So first criteria points and second classification points. Now, first is levels of organization. Okay. So let us take first point, levels of organization. Now here you have 3 levels of organization, or you can have it in 4 ways, 4 levels. So first is cellular level of organization, cellular. Second is tissue level of organization. Third is, yes, Aditya, correct, correct. Organ level of organization. And then fourth is organ system level of organization. Now, let us try to understand them one by one. First, cellular level of organization, this one. So, if you look at the body of
sponges. You will see that the body of sponges is made up of cells only. Yes. Correct, Adityavag. So these are the cells. These are all cells. Right? These are cells. So this entire body is cellular. And they are all interconnected. तो यहाँ पे okay, is it clear audio? Is it clear audio? Okay. 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 So first level is okay. So first level is cellular organization. That means body is made up of cells. So you can call this cellular level. And best example is sponges. They have only cells, no tissue. So second level is tissue level. Right? Now in tissue level, you can take example of Hydra. In case of Hydra, there are yes, Adityavag. In case of Hydra,
the cells make tissue and there is only tissue level. There is no organ. So you can call it simple tissue level of organization. Then organ level. Some tissues, they make organ. So there are some organs in the body which is beyond tissue. So best example is flatworm. These flatworms have some organs. And then fourth is organ system. So you can take example of organ system as organ system example can be from roundworm to man. Roundworm to man, you can take example of roundworm. Yes, different systems, digestive system, circulatory system, reproductive system, nervous system. So these animals from roundworm to man. Man means chordate. They all have organ system. So these are the four levels of organization. Either the animal can have cellular level, or it can have tissue level, or it can have organ level, or it can have organ system. So here the hierarchy is like this. Cellular level evolves into tissue level evolves into organ evolves into organ system. So this is the hierarchy. Now, second point is body plan. So basically there are three body plans. Three body plans are, yes, Aditya Wag. First is cell aggregate body plan. Cell aggregate body plan. First plan. Second is blind sac body plan. Blind sac body plan. And third is, correct Sheetal Chavan, third is tube within tube body plan. Now let us understand one by one. Tube within tube. Let us try to know these plans one by one. So when we talk about cell aggregate plan, as I told you, this is the body of a sponge.
and this body is made up of only cells. So it is aggregation of cells. Here the body is cluster of cells. So different cells have aggregated like this and they make the body. So this is cell aggregate plan. Example, sponges. Or porifera. When you look at blind sac body plan, this blind sac body plan is seen in coelentrates. Now, what is this blind sac body plan? What is this blind sac body plan? Now, let me show you the picture of Hydra. This is Hydra you must have seen in your earlier classes. These are tentacles. So if you cut this body longitudinally like this, if you cut the body, you will see this type of structure under the microscope. See, this is tentacle. And now you are able to see the internal structure. Okay. So this is the body cavity inside. This is mouth. This is mouth. This is body cavity. Now, this body cavity is like a sack, like a bag. जैसे एक बैग होता है ना, बैग, तो बैग का एक ही ओपनिंग होता है. तो यहाँ पे एक ही ओपनिंग इज, अगर अंदर जा रही है तो यहीं से जाएगी और कोई भी चीज बाहर निकल रही है तो यहीं से निकलेगी. बाकी पूरा बंद है. तो ब्लाइंड सैक का मतलब होता है बैग. जैसे हमारे पास मार्केट जाते तो एक हम बैग लेके जाते या थैली लेके जाते, तो थैले में सिर्फ ऊपर एक माउथ होता है, बाकी चारों तरफ से थैला बंद होता है ना, बैग. तो ये पूरा एक बॉडी सैक बनता है, पूरा एक बॉडी बैग बनता है जिसमें केवल एक ओपनिंग. सो देयर इज, तो इनकमिंग भी माउथ से होता है, आउटगोइंग भी माउथ से होता है. ओके, इनकमिंग माउथ से होता है, आउटगोइंग भी माउथ से होता है. सो coelentrates have blind sac body plan. Now let us talk about tube within tube body plan. अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये फ्रॉग है,
or you can take fish also. So you can take fish also. तो एक ट्यूब तो ये हो गई बाहर की, दिस इज आउटर ट्यूब, ये, और एक ट्यूब यहाँ पे अंदर है, ये ट्यूब। ठीक है, तो एक ये बाहर की ट्यूब हो गई, आउटर ट्यूब, और एक ये अंदर की ट्यूब हो गई, इनर ट्यूब। तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल इज इनर ट्यूब, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जहां पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल इनर ट्यूब हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल इज इनर ट्यूब। करेक्ट। अब एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं? यस, ये तो सब कॉर्डेट हो गए। यहाँ पे भी जैसे ये फ्रॉग है, तो ये इसका माउथ हुआ, ये स्टमक हुआ, ये डिओडिनम हुआ, ये इंटेस्टाइन हो गई, ये रेक्टम हुआ, ये एनस हो गया। तो ये इनर ट्यूब यहाँ पे भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो ओपनिंग है, वन इज कॉल्ड माउथ एंड अदर इज कॉल्ड एनस। तो यहाँ पे इनपुट यहां से होगा और एग्जिट यहां से होगा। करेक्ट। सो यू हैव टू एंड्स, माउथ, एनस। अब इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जो है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, इसमें दो, और एक को बोलते हैं ड्यूट्रो, ठीक है, क्लियर है साउंड? ट्यूब विद इन ट्यूब, एक आउटर ट्यूब हो गई, एक इनर ट्यूब हो गई। इसके दो टाइप है,
protostomia and deuterostomia. Protostomia and deuterostomia. Deuterostomia. अब अगर आप ये वर्ड को ब्रेक करेंगे, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया, अब ठीक है? वॉइस, एवरीवन गेटिंग द वॉइस क्लियरली नाउ? ओके ओके। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब में दो टाइप होते हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूट्रोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया का मतलब क्या हुआ? प्रोटो, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ, स्टोमा माउथ, प्रोटो फर्स्ट। तो जिन एनिमल्स का ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में माउथ पहले डेवलप होता है, उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। एग्जाम्पल, राउंड वर्म, राउंड वर्म, फिर एनिलीड्स मतलब अर्थवर्म, एनिलीड्स। देन थर्ड ग्रुप यहां पे हम ले सकते हैं मोलुस्का, मतलब जिसमें तुम्हारा ऑक्टोपस आता है, मोलुस्का। ठीक है? और आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा। तो ये है, यस, बटरफ्लाई, करेक्ट, आर्थ्रोपोडा, करेक्ट एग्जाम्पल। ओके, ये है प्रोटोस्टोमिया विथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये जितने भी ग्रुप है यहाँ पे माउथ पहले डेवलप होता है। फिर ड्यूट्रो, ड्यूट्रो मीन्स लैटर, आफ्टरवर्ड्स। स्टोमा, स्टोमा मीन्स माउथ, तो माउथ डेवलप्स आफ्टरवर्ड्स, मीन्स इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया? इसका सिंपल मीनिंग हो गया एनस डेवलप्स फर्स्ट। तो पहले एनस डेवलप होता है, फिर माउथ। जैसे एनस डेवलप्स फर्स्ट, जैसे ये ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल, तो ये माउथ हुआ। एंड देन दिस इज
एनस तो माउथ पहले डेवलप हुआ तो प्रोटोस्टोमिया, और एनस पहले डेवलप हो गया इधर वाला ओपनिंग तो ड्यूट्रोस्टोमिया। क्लियर? ट्यूब विद इन ट्यूब में दो तरह के एनिमल है, कौन कौन से? प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूट्रोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया माउथ डेवलप्स फर्स्ट, एनस आफ्टरवर्ड्स। ड्यूट्रोस्टोमिया एनस डेवलप्स फर्स्ट, माउथ आफ्टरवर्ड्स। मतलब जिन एनिमल में पहले एनस डेवलप होता है फिर माउथ डेवलप होता है उसको ड्यूट्रोस्टोमिया बोलते हैं। और जिन एनिमल्स में पहले माउथ एनस बाद में डेवलप, तो ड्यूट्रोस्टोमिया के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? तो ड्यूट्रोस्टोमिया के एग्जांपल होते हैं स्टारफिश, मतलब एकाइनोडर्मेट्स, एक्टिनोडर्मेट्स। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इज वेवरिंग, नेटवर्क इज वेवरिंग टू मच। यस हर्षल काटकर। क्या हो गया बेटा? सर आवाज नहीं आया आपका। आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नेटवर्क तो है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी आवाज आ रहा है क्लियर ना? आप भी आ रहा है सर, लेकिन आपको मैसेज भी नहीं जा रहा है। मैसेज भी नहीं जा रहा है? नहीं सर। तो वो उधर से प्रॉब्लम होगा आपके तरफ से। ठीक है। ठीक है, अभी बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। यस आई हैव अनम्यूटेड एवरीवन। थोड़ा बताओ तो सबको आवाज आ रहा है क्या? यस हंसजा, यस सर। प्रथमेश, हेमलता, यस सर। ओके, साक्षीवाग, गायत्री साळुंके, आवाज येतोय? मंजिरी, सर मध्ये मध्ये अटकत आहे. मध्ये मध्ये अटकून राहिला. हो सर. अच्छा, किरण मोरे, कैलास, लीना कांबळे, नाही येऊन राहिला का आवाज?
मनिंदर कौर, यस सर आ रहा है। आ रहा है? क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक। क्या बीच बीच में नेटवर्क वेवरिंग हो जाता है, इसके कारण वो प्रॉब्लम है? यश मते, ओके ओके। ऋषि पाइक राव, ऋषि पाइक राव, आ रहा है सर, क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक। समृद्धि मालवे, यस सर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है, ठीक है। अभी ऐसा कोई है क्या जिसको आवाज नहीं आ रहा है? थोड़ा बताओ मुझे। Anyone who is not getting my voice? सबको आवाज आ रही है क्लियर बिल्कुल? यस सर। चालू करता हूं, ठीक है। अब ये नेटवर्क का मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नेटवर्क के लिए क्या कर सकता हूं मैं? ओके ओके। नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो मैं क्या करूं? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है चलो। तो प्रोटोस्टोमिया डिट्रोस्टोमिया क्लियर एवरीवन? माउथ फर्स्ट, एनस फर्स्ट, ठीक है ना? एंड बेस्ट एग्जांपल इज ऑल कॉर्डेट्स। ड्यूट्रोस्टोमिया में ऑल कॉर्डेट्स को लेना है, मतलब ऑल कॉर्डेट्स हैव एनस डेवलप्ड फर्स्ट, ड्यूट्रोस्टोमिया। ड्यूट्रोस्टोमिया एग्जाम्पल एक्टिनोडर्मेटा, यस सर हाँ ये ड्यूटो एक या डेंटेरोस्टोमिया है ड्यूटेरोस्टोमिया, पर स्पेलिंग ठीक से DEU DEU दिख रहा है ना बेटा क्लियर? ड्यूट्रो DEU TERO, पर यू ठीक से नहीं दिखा है सर। ये ठीक से दिख रहा है ना बेटा? ये DEU अब दिख रहा है क्या ठीक से? हाँ एक काम कीजिए सर, खोड़िए और वापस यू लिखिए तो ठीक समझाएगा। ये अब बनाया ना, ये देखना यू दिख रहा है इतना बड़ा, ये पर यू। ये ड्यूट्रो तो ड्यूट्रो DEU TERO STOMIA, ड्यूट्रोस्टोमिया दिख रहा है अब क्लियर? सर एक काम कीजिए, यू खोड़िए और वापस लिखिए, जाड़ जाड़ दिखा है ना इसलिए ठीक से नहीं समझ आ रहा। अब तेरे को बता दिया ना यू यहाँ पे DEU, ठीक है? हाँ हाँ। एग्जाम्पल एकिनोडर्मेटा, इसका मतलब इस ग्रुप में स्टारफिश आता है। एकिनोडर्मेटा, अब ये दिख रहा है एकिनोडर्मेटा क्लियर? एकिनोडर्मेटा। और दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा का मतलब क्या हुआ? सब कॉर्डेट, जैसे फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, करेक्ट आदित्यवाग, करेक्ट, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसके 5 ग्रुप होते हैं कॉर्डेटा के मेन, है ना? 5 ग्रुप, 5 ग्रुप: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये 5 ग्रुप सारे के सारे क्या है? ड्यूट्रोस्टोमिया। दैट मीन्स their anus develops first, mouth develops afterward. जब हम डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में
तो हमारा माउथ बाद में डेवलप होता है, हमारा एनस पहले डेवलप होता है। तो इसलिए हम क्या हुए, ड्यूट्रोस्टोमिया। और प्लान हमारा क्या हुआ, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मतलब एक तो हमारी बाहर की ट्यूब है, ये बॉडी वॉल है ना, एक बाहर की ट्यूब है और एक ट्यूब अंदर है। तो बाहर की ट्यूब हमारी बॉडी हो गई और अंदर की ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इसका ओपनिंग माउथ और इसका एंड एनस। तो हमारा ये स्ट्रक्चर पहले डेवलप होता है, हमारा एनस पहले डेवलप होता है और माउथ बाद में डेवलप होता है। इसीलिए हमको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया। ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? क्लियर? ओके ओके ओके, थैंक यू रोहित, थैंक यू समृद्धि, थैंक यू। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा बॉडी प्लान के बाद? प्लान क्या था? सर बॉडी सिमेट्री। वेरी गुड, वेरी गुड, बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री तीन तरह से होती है। बॉडी सिमेट्री body symmetry is of three types. SYMMETRY, जिनको दिख नहीं रहा है स्पेलिंग बता रहा हूं मैं। SY SYMMETRY। SYMMETRY, बॉडी सिमेट्री। ठीक है, अब बॉडी सिमेट्री तीन तरह की हुई। सर टी की ऊपर की डांडी ठीक कीजिए ना। हाँ, बॉडी सिमेट्री तीन तरह से हुई। यस आदित्य, रेडियल, रेडिकल नहीं, रेडियल, रेडियल, बायलैटरल। वेरी गुड, बायलैटरल असिमेट्रिकल। एंड asymmetric, radial, bilateral and asymmetric, bilateral and third is asymmetry. So asymmetry means no symmetry. asymmetry का एग्जाम्पल बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, पोरीफेरा, वेरी गुड। रेडियल का एग्जाम्पल बताओ। इकाइनोडर्मा। यस यस, करेक्ट। और बताओ रेडियल का एग्जाम्पल। और बताओ। यस, और बताओ रेडियल का एग्जाम्पल। टेनोफोरा। टेनोफोरा। टीनोफोरा करेक्ट है, करेक्ट है। सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा, राइट। ओके, so radial symmetry found in some coelentrates, all coelentrates you can say, some sponges. All sponges are not asymmetric, some sponges have symmetry which is radial symmetry, and starfish has radial symmetry.
Okay. Then bilateral symmetry. arthropoda annelida, Correct. Annelida, arthropoda. मोलुस्का, Mollusca is initially bilateral, but afterwards it becomes asymmetric due to coiling of body. So हर एक क्लास की सिमेट्री अलग से डिस्कस करेंगे जब अलग एक एक क्लास लेंगे, जब हम फाइलम पढ़ेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सबकी सिमेट्री डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। मैन में कौन सी सिमेट्री होती है? विच सिमेट्री इन मैन? बायलैटरल, वेरी गुड। फ्रॉग? कौन बोला रेडियल? फ्रॉग में कौन सी सिमेट्री हुई? सिमेट्री। bilateral, फिश? bilateral, करेक्ट। बर्ड्स? bilateral, So all vertebrates have bilateral symmetry. All chordates have bilateral symmetry. है ना? Fish, amphibians, reptiles, birds and mammals have bilateral symmetry. तो इस तरह से हम सिमेट्री के बेस पे 3 ग्रुप बना सकते हैं। असिमेट्री, अब इसका मतलब क्या है सिमेट्री का? जब किसी एनिमल को आप एक पर्टिकुलर प्लेन में काटते हो तो उसके 2 पार्ट इक्वल अगर आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। जैसे एग्जांपल के लिए ये फ्रॉग है समझो, दिस इज फ्रॉग, ठीक है। अब इसको आपने 2 पार्ट्स में यदि यहां से काटा, यहां से, तो इसका जो राइट साइड है वो मिरर इमेज बनता है लेफ्ट साइड का। लेकिन ये सिमेट्री क्या हुई? ये सिमेट्री हो गई बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन अगर इसको आपने ऐसे काटा, ऐसे, तो 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे काटा तो 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे काटा तो सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर इफ यू कट दिस एनिमल फ्रॉम माउथ टू एनस, you get 2 equal parts, right and left, which are mirror images of each other. तो ये हो गया bilateral symmetry. अब रेडियल में क्या होता है? जैसे ये एनिमल की बॉडी है तो ये रेडियल हो गई। तो रेडियल में आप कोई भी प्लेन से काटो, इधर से काटा तो भी 2 इक्वल पार्ट बने, ऐसे काटा तो भी 2 इक्वल पार्ट बने, ऐसे काटा तो भी इक्वल बने 2। तो रेडियल में किसी भी रेडियल प्लेन से अगर आपने कट किया तो यू गेट 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? थ्रू एनी रेडियाई इफ यू कट द एनिमल यू गेट 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल हो गई। अब जैसे मान लो अपन ने स्पॉन्जेस ले लिए, स्पॉन्जेस का एग्जांपल ले लिया, जैसे ये साइकॉन है, ये इसकी बॉडी है, ये साइकॉन की बॉडी है। अब इसको आप कहीं से भी कट करो, चाहे ऐसे कट करो चाहे ऐसे कट करो, you will not get 2 equal parts. So this animal is asymmetric. ठीक है, चलो डिस्टरबेंस बहुत है आज, ये नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। आगे कल जर्म लेयर्स का आगे लेते हैं, ठीक है। सो मेरा हॉटस्पॉट भी नहीं चल रहा है अभी। कृष्णा सर आ गए, मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। कृष्णा सर आ गए। सर असाइनमेंट भेजो ना। बेटा कल से वही नेटवर्क का ही प्रॉब्लम था, आज भेज दूंगा असाइनमेंट, आज भेज दूंगा।
Krishna sir is there. कृष्णा सर आपको होस्ट बना दिया. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Wow. Good morning, students. Let me second set this. Good morning, students. सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना बेटा? यस. कोणाला काही वादा नाही याच्यामध्ये? Everything is perfect. You're able to see the board properly. ठीक है. Let us start our class. Just give me 2 seconds to. So we have started with angular motion, circular motion to be exact. Kinematics of circular motion start किया था. ठीक है. एक छोटे प्रॉब्लम दे देता हूँ. स्टार्ट उसी से करते हैं, फिर बाद में आगे क्या देखेंगे. एक प्रॉब्लम ले लो. A wheel rotating at 50 RPM, 60 RPM increases its speed to 240 RPM in 5 seconds. Find its angular acceleration and total angular distance. एक आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है, सभी को प्रॉब्लम क्लियर है बेटा. अब यहाँ पे सिर्फ एक है कि आरपीएम, ये आरपीएम का मतलब देखिए, सभी को मालूम रहेगा, फिर बता रहा हूं, रोटेशंस पर मिनट. 1 रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? थीटा इक्वल्स टू 2 पाई. एक रोटेशन बोले तो 2 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही बात है ना?
ठीक है, सो रोटेशन पर मिनट का भी बता दिया। अब ये डिनोशन में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। अब ये वाला करने की कोशिश करो। आई विल गिव यू 2 सेकेंड्स, 2 मिनट। हाँ यस स्टूडेंट, आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओमेगा 0 और ओमेगा 1 दिया है, टाइम दिया है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ थीटा निकालना है। वी हैव लर्नड अबाउट दिस। लोड इज ब्लर। वैष्णवी कुलकर्णी, एक बार परत ज्वाइन हो जाओ, एक बार फिर से ज्वाइन हो जाओ। पाई में आएगा टर्म्स, पाई का वैल्यू लगा के इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करो, पाई में निकालो आंसर, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए 1 आरपीएम, ये रोटेशन स्पीड बता रहा है। आरपीएम यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का और एक यूनिट है ये, रोटेशंस पर मिनट या रोटेशंस पर सेकेंड। ये ओमेगा का यूनिट है। ओमेगा का यूनिट अपन ने क्या पढ़ा था कि रेडियन पर सेकेंड है ना। ओमेगा का यूनिट क्या पढ़ा था, रेडियन पर सेकेंड। दिस आर वन मोर यूनिट्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। एक आरपीएम का मतलब क्या है, एक मिनट में कितने रोटेशंस हो रहे हैं, खा गया ये 60 से, यहां लिख देता हूं मैं, ओमेगा 0 इक्वल्स टू 60 आरपीएम। ना आरपीएम को यहाँ पे ओमेगा 1 भी लिखे देता, ओमेगा 1 कितना है 240 आरपीएम। आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, जैसे किलोमीटर पर मिनट को, पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं अपन, यहाँ पे भी ऐसे ही है। एक रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन, कितने मिनट में। अब देखो ये पर सेकेंड है तो ये भी पर सेकेंड होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 आरपीएम इक्वल्स टू 2 पाई रोटेशन पर मिनट, दिस इज रेडियन पर सेकेंड। ये 2 पाई रेडियन है एक सेकेंड में, एक मिनट की जगह 1 रोटेशन है ना। इसको मैं ऐसे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये रिलेशन ध्यान में रखो, सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा यूज होगा। व्हाट इज 1 आरपीएम इक्वल्स टू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा 0 क्या बनेगा 2 पाई बाय 60 इंटू 60,
ये बना 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा 1 क्या बना 2 पाई बाय 60 इंटू 240, ये वन जा ये फोर जा, ये बना 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहां से यहां जाने कितना टाइम ले रहा है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। निकालना क्या है, अल्फा नहीं मालूम और थीटा नहीं मालूम। चलो अल्फा निकालते हैं पहले, तो कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, टाइम वाला है तो फर्स्ट ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 0, देखो 2 पाई से 8 पाई मतलब बढ़ रहा है, तो प्लस अल्फा टी, तो यहाँ से टी लिख सकता हूँ, अल्फा निकालना है ना, टाइम मालूम है, तो अल्फा लिख सकता हूँ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 0 बाय टाइम, कितना ये 8 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, तो अल्फा कितना बना है, अल्फा बना 4 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया अल्फा। टाइम कितना रहेगा, यस स्टूडेंट्स, यस, बोर्ड प्रॉपरली जूम है बेटा, इससे ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं की, जरूरत बोले तो वो कट हो जाएगा कुछ ना कुछ से। ओके, अल्फा हो गया, अभी थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये ओमेगा 0 कितना है 2 पाई इंटू 5 प्लस हाफ अल्फा कितना है 4 पाई अपॉन 5, ये 5 का स्क्वायर, 5 कट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, ये बना 10 पाई, और ये बना देखिए ये भी बना 10 पाई, कितना बना ये 25, थीटा कितना आया 20 पाई। ओके, सो इन दिस प्रॉब्लम ये वाला एक नया चीज सीखने मिला है। ठीक है, तो 1 आरपीएस अगर मैंने बोला कि भैया 1 आरपीएस कितना होगा, 1 आरपीएस विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये 60 की जरूरत नहीं है ना, पर मिनट है यहाँ पे, ये पर सेकेंड है। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड हियर। हाँ, थैंक यू। तो दिस इज 6 पाई ना, ओहो, सॉरी फॉर दैट। नाउ सबको क्लियर है? ओके, यस, जाहिद, शीतल, आर वी क्लियर बच्चों? अभी क्लियर है सभी को? अनघा, यस बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका? सर वही था 6 पाई वाला। ओके ओके, आर वी कंप्लीटली क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये रिलेशन याद रहेगा आप लोगों को? नाउ लेट अस लर्न, जैसे अपन ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा ना, वैसे लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, अरे ये फोटो नहीं निकाला मैंने, स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो इसके बाद का निकालता हूँ। ये किसी ने निकाला हुआ तो ग्रुप पे शेयर मेरे को भेज दो। ठीक है, चलिए बच्चा, नाउ लेट अस कंटिन्यू। So last class में अपन earlier we have studied one thing, one relation between linear and angular terms. So पहला अपन ने देखा था v equals to अपना अगर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल है, ये पॉइंट
सपोज ए से बी गया, ये थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। ऐसे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे अपन ने v ये निकाला था, r क्रॉस ओमेगा, और एक्सेलरेशन वाज गिवन एज r क्रॉस अल्फा, ठीक है। ना इसमें r वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर था। यहाँ लिख रहा हूं मैं पूरा, क्या था, पोजीशन वेक्टर किसका, OA का। तो यहाँ पे मैं OA लिख दूं और OB, यहाँ OA लगा देता हूँ, ठीक। दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये किसके टर्म्स में है, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। समटाइम्स दे विल बी आस्किंग, मतलब थोड़े बुक्स, अब थोड़े बुक्स इन्होंने r क्रॉस ओमेगा लिया, r क्रॉस अल्फा लिया, थोड़े बुक्स ने ओमेगा क्रॉस r, अल्फा क्रॉस r, ठीक है। मगर इससे ज्यादा वही प्रेफर किया जाता है। तो वो कौन से टर्म्स में, सो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म रिलेशंस, जो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं, व्हेन v क्रॉस इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, यहाँ पे r वेक्टर क्या है आपका, रेडियस वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर है, रेडियस वेक्टर। कहां से कहा जा रहा है, O से A, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A से O वाला वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों डिनोशंस होते हैं सेम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अल्फा सॉरी A वेक्टर A इक्वल्स टू R, ये अल्फा क्रॉस R। R वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये वाला डिनोशन भी यूज होता है, ये वाला डिनोशन भी यूज होता है जब R ओमेगा क्रॉस R या अल्फा क्रॉस R हो रहा है। इसका मतलब R कौन सा वेक्टर है, रेडियस वेक्टर। इसमें देखो O से A से O या B से O, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग रहेगी, ठीक है। सिमिलरली O से A या O से B, रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा मगर डायरेक्शन अलग, ठीक है। तो R वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस वेक्टर। R वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। सो दिस डिनोशन इज आल्सो यूज्ड क्वाइट अ लॉट, ओके। we'll be seeing both of them, don't worry about that part, okay। now एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। एक पार्टिकल है अपन लीनियर एक्सेलरेशन, ए, जैसे अपन ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, वैसे अब लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी एक खासियत है, ठीक है। अपने पास एक रिलेशन है, ए वेक्टर इक्वल्स टू आर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इक्वल्स टू अल्फा आर। नाउ व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ सभी का एक 5 मिनट के लिए ध्यान, यहाँ पे थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है। उसको सिर्फ सिंपली सिंपल टर्म्स में आपने आंसर करना है। फर्स्ट, अब अल्फा क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स, कैन अ पार्टिकल बी परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा 0 है तो सर्कुलर मोशन करेगा क्या पार्टिकल, बताना है। सोचो यश एक बार, यश किरादक, प्लीज सेंड मी और मतलब मेरे को व्हाट्सएप पे आपका नाम और ये सब भेजो। देखो, इफ
अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी। अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है, ओमेगा इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कभी भी कोई भी आंसर अगर आपको फिर से मतलब वेरीफाई करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर में क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ अल्फा है तो वहां पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, अगर अल्फा 0 है पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है क्या, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर ए 0 बना तो वी कांस्टेंट बनेगी, वी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी के साथ जा रही है ना। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा कांस्टेंट है बोले तो कौन सा बना, कांस्टेंट एंगुलर मोशन, कौन सा बना, कांस्टेंट एंगुलर मोशन, क्या बना, कांस्टेंट एंगुलर मोशन। कोई बात है इसमें, सबको क्लियर है बेटा ये, ठीक है। मतलब अल्फा 0 रहा, इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज नॉट द ओनली क्वांटिटी विच इज कॉजिंग एंगुलर सर्कुलर मोशन, ओमेगा इज वन मोर क्वांटिटी। एक्चुअली ओमेगा की वजह से सर्कुलर मोशन होता है ना। अगर वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल मूव कर रहा है क्या, नहीं भैया, वाकई वहां पे ही है ना, वेलोसिटी 0 है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो जो इंस्टेंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो इंस्टेंट पे तो पार्टिकल रेस्ट पे ही है ना, ये तो पक्का ही है, ठीक है। जो इंस्टेंट पे रेस्ट पे ही है, ठीक है। कोई बात है इसमें, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइन इनफ, ओके। नाउ द अदर सिंपल क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अल्फा इक्वल्स टू 0 बना, तो ए विच इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ये भी 0 बनेगा, है ना। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन कितना बना, 0 बन गया। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, कैसे लिखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, उसका लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा क्या, हाँ या ना। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग circular motion, a particle performing circular motion, will its linear acceleration be 0? No, very good यश, ठीक है। अगर पार्टिकल कोई भी, वेरी गुड विवेक, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वेरी गुड मनिंदर, रोहित, अदर्स, वेरी गुड, सगळ्यांना माहित आहे ते काय सांगता, काय मतलब क्या बुलाते हैं अपन उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही बात है, वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू लर्न दोस थिंग्स टुडे, okay। Now what exactly is happening, a particle performing circular motion, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, a particle performing circular motion, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसका वेलोसिटी वेक्टर ये कांस्टेंट है क्या, वेलोसिटी वेक्टर बोला है। अब वेक्टर बोले तो दो आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पार्टिकल का डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट है क्या, नहीं, हर पॉइंट पे टैंजेंट अलग अलग बनेगा। तो ये इज ऑलवेज चेंजिंग, क्या हो रहा है, ऑलवेज चेंजिंग। तो यहां से अपने पास दो है, एक यूसीएम, ओनली डायरेक्शन चेंजिंग, क्योंकि वी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ओनली डायरेक्शन चेंजिंग। वी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है ना, ओमेगा कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। और नॉन यूसीएम में, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजिंग।
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग। यूसीएम में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नॉन यूसीएम में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से अपने को एक बात पता चली कि एक्सेलरेशन जो है वो दो प्रकार के हैं। लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो दो प्रकार, there are two causes which is causing linear acceleration. There are two causes which is causing linear acceleration. First, linear acceleration देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से एक linear acceleration आएंगी। सेकेंड, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी और एक linear acceleration आएंगी। So we have two names for them. अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, whenever a particle is performing circular motion, वीडियो में प्रॉब्लम है? यस, वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? वीडियो में क्लियर है ना? चलो यार, किसी और के लिए जिसको भी प्रॉब्लम हुआ होगा, अभी मैं इसको बंद करके चालू कर रहा हूँ, देख लो। ठीक है, चलिए अभी पूरा सेट हो गया, एकदम खतरनाक। चलो, so there are two accelerations coming into play. So let me take a pic of this. जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इट हैज टू लीनियर एक्सेलरेशन। सभी को मालूम है एक को क्या बुलाते हैं? यस, आई विल बी सेंडिंग यू माय मोबाइल नंबर व्हाट्सएप, उस पर पिंग करो बेटा। इस ये वाला मैसेजेस मेरे पास मतलब रहेंगे नहीं कि वो सेशन के साथ एंड हो जाते हैं। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट है जिसका जो ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप नंबर भेजा है, उस पर नाम और आपका क्लास डाल के पिंग करो। टू लीनियर एक्सेलरेशन, एक को बुलाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके लिए कंपलसरी है, ये मालूम है आप लोगों को, लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है इसके बारे में आपने। ठीक है, इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर मैंने एक छोटा सा थ्रेड लिया, उसके एंड पे एक स्टोन को बांधा और सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते क्या करूंगा मैं, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। सर्टन पॉइंट पे उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि उसके जो मैं थ्रेड लिया था वो टूट गया। टूटते as soon as the thread breaks, जैसे थ्रेड ब्रेक हो जाता है, पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में आएगा? जो पॉइंट पे टूटा वहां से टैंजेंशियल जाएगा। Where the thread breaks, at that point it goes tangential direction. तो मैंने दो पॉइंट्स लिए, एक टूटने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर ब्रेकिंग, एंड जस्ट आफ्टर। तो दोनों में देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो टैंजेंशियल है, मगर यहाँ देखो टूटने के बाद जो टूटते समय टैंजेंशियल डायरेक्शन मिला वही डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ इससे पहले देखिए पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा था हमेशा, अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब इससे पहले कोई तो भी एक सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स एक्ट होनी चाहिए, और ये हर एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है हर एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट होगा, और ये केस सही है। उसको क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अपन इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन करके अलग चैप्टर आएगा, डोंट वरी। ठीक है,
उसमें पढ़ेंगे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और उसके एक्सेलरेशन क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे मैंने रेडियस वेक्टर बोला है, देयर आर टू डायरेक्शंस, वी हैव टू डायरेक्शंस। फर्स्ट, रेडियल डायरेक्शन, तो इसको मैं एक्सिस भी बोल सकता हूँ, रेडियल डायरेक्शन या रेडियल एक्सिस, ठीक है। तो अपन ये पढ़ेंगे पहले, इसके पहले फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वी हैव टू डायरेक्शन, रेडियल एक्सिस। क्या बुलाते हैं इसको? रेडियल एक्सिस। जैसे अपना एक्स और वाई एक्सिस है ना, वैसे यहाँ पे दो डायरेक्शन है। हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट एक रेडियल डायरेक्शन है। रेडियल क्या है? अलोंग, एक डायरेक्शन, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, अलोंग रेडियस वेक्टर, along radius vector, negative direction, opposite to radius vector, इसको एक नाम है रेडियली आउटवर्ड्स, नाम नहीं है, सिर्फ नॉर्मल। तो अगर नेगेटिव रहा, ऑपोजिट टू आर वेक्टर, रेडियली इनवर्ड्स। ये है रेडियल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है? रेडियल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है? रेडियल डायरेक्शन, ठीक है बेटा। वीडियो स्टक हो गया है क्या? है ना? 2 seconds, लेट मी। अभी ठीक है बेटा? इज इट क्लियर? ओके ओके, परत मी सांगतो एकदा। फॉर एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जैसे अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई पार्टिकल जो 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए अपने पास एडिशनल एक है रेडियल एक्सिस। रेडियल एक्सिस क्या है? अलोंग द रेडियस, ठीक है। और ये हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड है? हर एक पॉइंट पे डिफाइंड, ठीक है। ये ऐसा एक वेक्टर, ये पार्टिकल, ये अपना एक्स और वाई एक्सिस, ये आपका सर्कल है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे कुछ तो, ठीक है। रेडियल वेक्टर बोले तो ये ऐसा, ये एक एक्सिस, ये अंदर की तरफ एक एक्सिस, और दूसरा है, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सिस, क्या है ये? रेडियल डायरेक्शन, रेडियल एक्सिस। सेकेंड, टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक्सिस। टँजेन्शियल म्हणजे कसं असतात? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अगर ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। और ये जो एक्सिस है, हर एक, अब इसको मैं आर लगा देता हूं और इसको टी लगा देता हूं। रेडियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस, ये हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है अलग अलग। फॉर एग्जांपल बी, तो ये बनेगा टेंजेंशियल और ये बनेगा रेडियल।
सी पॉइंट पे, तो ये बनेगा रेडियल और ये बनेगा टैंजेंशियल। सो हर एक पॉइंट पे टैंजेंशियल ये क्या है, अलोंग द टैंजेंट। डायरेक्शन कौन सा है, अलोंग द टैंजेंट, पॉजिटिव इन डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसे घूम रहा है तो यहां पे रहेगा। नेगेटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी दो डायरेक्शन में अपने एक्सेलरेशन है ना, इसी दो डायरेक्शन में अपने एक्सेलरेशन है। देखिए अब ठीक है। नाउ वी हैव every particle performing, sorry, for ऐसे डायरेक्टली लिख देता, टू लीनियर एक्सेलरेशन। फर्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये लिखा था मैंने यहाँ पे, तो अपन ने पहले डायरेक्शन देख ली। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको AR से भी डिनोट किया जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए अपने को ये थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। ऑपोजिट वाला पॉजिटिव ले लेंगे, साथ वाला नेगेटिव लेंगे। अब ये अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से लेते, अपन विल स्टिक टू दिस, ठीक है, क्योंकि CBSE में और SC वर्मा में यही है। अब जब मेरे को जो टीचर ने पढ़ाया तो उसने उल्टा बताया, ठीक है। तो ये आपके उस पर डिपेंड होगा। तो रेडियली इनवर्ड्स पॉजिटिव लिया, रेडियल आउटवर्ड्स नेगेटिव लिया, रेडियल इनवर्ड्स पॉजिटिव लिया, रेडियल आउटवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव लिया, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियल इनवर्ड्स आता है, ठीक है। तो दिस एक्ट्स रेडियल इनवर्ड्स, radially inwards, for every particle performing CBM, for every particle performing UCM और non-UCM, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी एक्ट होगा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी एक्ट होगा। अगर मैं इसमें आपको पूछूं, दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मगर दोनों केस में कॉमन वेलोसिटी का कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। यूसीएम में भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नॉन यूसीएम में भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दो एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको अपन अलग कर देते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आर और ये एटी, ठीक है। ये हर एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है। ये तो भी सिर्फ नॉन यूसीएम के केस में एक्ट होगा, यूसीएम के केस में ये कितना होगा, 0। मतलब ये किसकी वजह से आ रहा है, मैग्नीट्यूड जब चेंज हो रहा है तब आ रहा है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड और लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी की चेंज हो रही है तभी टैंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है। मगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, देखो, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसके वजह से क्या आ रहा है अपना, रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है। कौन सा है वो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा है वो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा कौन सा है, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसको दो तरीके से डिनोट किया जा सकता है, एक है AR या AC। क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका एक्सपेरिमेंटली देखा, ये है उसकी मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर हो गया। तो इसका और एक रिलेशन ये भी बता सकता हूँ कि V की जगह R ओमेगा लगा दूंगा, ओमेगा स्क्वायर R बनेगा। ये दो वाइडली यूज्ड इक्वेशंस हैं, V स्क्वायर बाय R, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ओके, ठीक है। अनगा क्लियर है क्या अभी? यस कोई डाउट है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन पर आके छोड़ दूंगा आपको मैं आज, इसके ऊपर के जो थोड़े डायरेक्शन और ये है अपन कल के उसमें और अच्छी तरह देखेंगे, प्रॉब्लम्स के थ्रू और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया टैंजेंशियल, हो गया। ये सेकंड है tangential acceleration, AT, क्या है वो? AT, ठीक है। ये कब आएगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन बताया मैंने। तो ये किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तब आएगा A इक्वल्स टू dv बाई dt। अब कहीं भी वेक्टर नहीं लगाया, यही होता है अल्फा आर, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट, यहाँ पे होगा अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट, ठीक है। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो AR आएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रही थी AR और AT आएगी, ठीक है। पर यहाँ देखो, रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज perpendicular to AT at that point for every point। हर पॉइंट पे AR is always perpendicular to AT, हर पॉइंट पे AR is always perpendicular to AT। This is true for all the points, this is true for all the points। हर पॉइंट के लिए सही बात है, यही ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां से अपन ने क्या करे, वी डिफाइन टू यूनिट वेक्टर्स, along radial and tangential directions, along radial and tangential directions। क्या एक्ट हो गए? क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर है ना, और अपने को चाहिए कौन सा एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो, तो अपन ने लगा दिया ER रेडियली इनवर्ड्स और ET along the tangent।
at the point. ER और ET, ठीक है, ये है आपके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग है, इफ वी लुक इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। यहां से मैं AR लगा सकता हूं, AR वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, V स्क्वायर बाय R, कौन से डायरेक्शन में, रेडियल इनवर्स, तो ER कैप, और AT लगा सकता हूं, क्या है वो, dV बाई dt, ET कैप, या R अल्फा ET कैप, ये टैंजेंशियल है, ठीक है। सो नेट एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल, नेट एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल, जब UCM रहेगा तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी। सो नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम एज रेडियल एक्सेलरेशन, वो कितना है, V स्क्वायर अपॉन R ER कैप। ये हो गया UCM के लिए। दूसरा नॉन UCM के लिए, UCM के लिए टैंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगा, नॉन UCM के लिए टैंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा क्या, नहीं। तब नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, तब नेट एक्सेलरेशन रहेगा AR प्लस AT, ये दो वेक्टर्स का एडिशन। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, A नेट का, विच विल बी इक्वल टू, दोनों परपेंडिकुलर, तो AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन R ह्याचा स्क्वायर प्लस dV बाय dt ह्याचा स्क्वायर, आणि डायरेक्शन म्हणजे अँगल थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, कौन सा थीटा लेना है, ठीक है। ये तो एक तरफ मेरे को ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ ड्रॉ करता हूँ। tan इनवर्स AT बाय AR, ER वेक्टर के साथ, ठीक है। तो जो इक्वेशंस अपने को टैंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन के लगते हैं सर्कुलर मोशन में, वो लगा दिए, देखिए मैं यहाँ पे, सभी को क्लियर है, इसमें देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी बेटा। यस, कोणाला काही डाउट आहे याच्यामध्ये, आसान है, दिस इज जस्ट लाइक लर्निंग बेसिक्स। बोलिए बच्चे, कोई डाउट है तो पूछो अभी। येस, क्लिअर झाला का, कोणाला काय बाधा आहे याच्यामध्ये, काय विचारायचंय, काय करायचंय, आर वी कम्प्लीटली क्लियर स्टुडंट्स, येस। ठीक है, चलेगा, so we'll stop here, we'll continue in tomorrow's class, tomorrow। yes, कोई डाउट है बेटा आपको, थीटा रॉन्ग है, फिर थीटा क्या होना चाहिए, मतलब आपने वर्टिकल के साथ टैंजेंशियल के साथ एंगल लिया है, यू आर मेकिंग एंगल थीटा विद द टैंजेंशियल डायरेक्शन। tan थीटा बोले तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड आता ना, when you are taking with tangential direction the theta, then that is right, AR by AT।
but when you are taking with radial direction, पेपर, हाँ हाँ मैं फोटोज भेजता हूँ शैली। गायत्री आपका समझा नहीं मेरे को। पेपर अच्छा, ओके यस वेरी गुड, ठीक है। अबाउट योर पेपर आई थिंक महादेव सर हैज अनाउंस्ड, राइट? महादेव सर ने अनाउंस नहीं किया क्या आपके एग्जाम के बारे में? ठीक है, फिर yes yes I will do it today, don't worry, ठीक है। the announcement is that your exam will be tested supposed to be conducting today, but I think he has some error work that has come, मतलब वो ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो की के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया उनके, तो मैडम सेट करके वो करने के लिए शायद से कल शाम मिलेंगे, ठीक है। महादेव सर आज ग्रुप में डालने लगा था आफ्टर योर क्लास, ठीक है। so it will be happening most probably in tomorrow evening. Today evening it was scheduled, but maybe it will be happening in tomorrow evening. I'll make him message you in the group around 12:30 12:31 के बीच में आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन जो पहले बताया था वही टेस्ट होने वाली है, ओके बेटा? ओके चलो, आपका नेक्स्ट क्लास 10:30 बजे, यू कैन गो फॉर दैट, विल स्टॉप हियर, ओके। सभी को क्लियर है? कोई बाधा नहीं है? एग्जाम मोस्टली कल शाम में होगा। द न्यू स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो डू इट, ओके बेटा। थैंक यू, वेलकम अरिंदर, बाय ऑल ऑफ यू। और जो नए बच्चे उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उन्होंने उस पर मैसेज कर देना है, ओके बेटा, बाय बाय।